So today topic is the making and unmaking of non-cooperation. So the making and the unmaking of non-cooperation movement. Okay, so here comes how the movement starts, and you will see the what were the causes or reason for the movement. Okay, and then we will see here another thing, the suspension of the non-cooperation movement. Okay, so first we talk about Gandhi, because chapter is all about Gandhiji. So Gandhiji first experiment of Satyagraha in India was a very important movement. This week you can see his first experiment with Satyagraha was the Champaran, and then Ahmedabad, and then comes Khera. So Gandhiji made his first experiment in Satyagraha in the Champaran district in Bihar. And then you can see what was the reason for that. You know that in Champaran the farmers, the peasants were forced to grow indigo, and then the policy of the Britishers were very suppressive or oppressive as far the revenue is concerned, and they were forced to grow the indigo. So Gandhiji led the movement here, and it was the first success of Gandhiji. Then we talk about Ahmedabad. So what is there in Ahmedabad? Meal worker strike. Very good, beta. Meal worker strike regarding the plate bonus. Okay, and Gandhiji advised them to go for a strike so that they could put pressure on the meal owners. And then you can see there was 35% of incentive or the bonus they got after the strike. And then comes the Khera. The Khera movement. What is this Khera? खेरा में आपने देखा वहाँ पे ये किसान का क्या था कि आप देखते ड्यू टू द फेलियर ऑफ द क्रॉप दे वांट द रेमिशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू और द डिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू. ओके, सो दीज वर द थ्री मूवमेंट्स व्हिच वर सक्सेसफुल and it made popular, it made Gandhiji popular among the masses. So these, when we talk about these three movements, they are the localized struggle. Okay, localized here is means restricted to a region. अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद और खेड़ा, इनका होम टाउन है कहाँ पे? गुजरात. ठीक है, क्षेत्रवाद आ गया, क्षेत्र को लेकर था. यहाँ पर हम चंपारण बोलते हैं, ये कहाँ पे? बिहार में. लेकिन अब जो मूवमेंट्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो कैसा है? उसको हम कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है. ठीक है, इट्स अ नेशनलिस्ट मूवमेंट. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द non-cooperation movement. But as far Gandhiji experiment here was successful in these three movement, and this movement made Gandhiji very popular among the masses. So अब एक पृष्ठभूमि बनती जा रही है कि किस तरह से बड़ा सा आंदोलन खड़ा हो, है ना, जिसे हम असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स कहते हैं. तो क्या है वो पृष्ठभूमि? यहाँ शुरुआत होती है रॉलेट एक्ट. ठीक है, तो आप देखते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हिच ऑकर्ड इन द ईयर 1914 to 18. ओके, उस समय क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में. अब इन्होंने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने डिफेंस इंडिया एक्ट लगाया. ठीक है, क्या था इस एक्ट में?
व्हाट वाज देयर इन द एक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इसका रीजन क्या था? टू अवॉइड और टू रेस्ट्रिक्ट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया. To curb or to control the revolutionary activities in India, they put Defence India Act, in which two important provisions was there. One was, what was there in this provision? Imprison any person without any trial. है कि नहीं है? बिना मुकदमे के किसी को भी आप हिरासत में ले सकते हो. टाइम पीरियड ऑफ कन्विक्शन वाज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर 2 years. Okay, imprison any person without trial, and the conviction here by the court for law was for 2 years. And second was the censorship. Okay, censorship of the press. So when we talk about the censorship of the press, what do you understand with the censorship? सेंसरशिप क्या होता है? I think we discussed that in the class also. What is censorship? हाँ, जो भी कुछ प्रेस में छापेंगे किसके अंडर, किसके गाइडेंस है, किसके उसमें होना चाहिए? ब्रिटिश ऑफिशियल जिनको हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है, पहले उनके सुपरविजन में होना चाहिए व्हाटएवर बीइंग पब्लिश्ड. ओके, इसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था. वन वाज द, व्हाट वाज द टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस? एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल. ओके, सेकंड वाज द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस. So अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, तो नाउ दिस एक्ट वाज टू बी रिपील्ड और शुड बी कैंसल. बट यहाँ पर आप देखते हैं सर सिडनी रॉलेट, ओके, a commission that was headed by Sir Sidney Rowlett, and what he recommended that this act should be in continuity. It should not be repealed. Okay, it should be in the continuity. We are talking about which act? Rowlett Act. It should be in continuity. And then what happened? Then here comes, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक तो आप व्यक्ति की जीने की स्वतंत्रता पे आप बंदिश लगा दो, ठीक है. दूसरी चीज आप ये देख रहे हैं कि आप किस पे बैन लगा रहे हैं. सेंसरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? जो किसी भी व्यक्ति का हैबियस कॉर्पस, जहाँ पर आप देखते हैं किसी व्यक्ति को बंदी बना रहे हो बिना किसी मुकदमा के और उसको 2-2 साल तक जेल पे रख रहे हो, ठीक है. तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, इट इज व्हाट? It is restricted by that act. So for Gandhiji again, he organized a Satyagraha Sabha and decided to launch a movement against this act. तो उस दिन क्या रखा गया? बंद और हड़ताल रखा गया in important cities. आ रहा है समझ में? हम यहाँ पे अभी हम पृष्ठभूमि में या बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो भी फैक्टर्स हैं. तो अभी हम किस पे सबसे पहले दुविंदा हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बैकग्राउंड की कि क्या कारण था फॉर द, नहीं, क्या कारण था किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का. तो उसमें एक फैक्टर अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना. तो पहली चीज हमें दिमाग में क्या डालना है? अगर हम कॉज की बात करते हैं, फर्स्ट कॉज इज द रॉलेट एक्ट. अब रॉलेट एक्ट में क्या था? तो हमने 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे, ठीक है. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पर एक एक्ट लगाया गया और उस एक्ट में ये प्रोविजंस थे, ठीक है. डिटेन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल, एंड देन यू कैन सी सेकंड वाज द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस. अब उन्होंने फर्स्ट वॉर खत्म हो गया, अब इसको हटाना था तो उन्होंने नहीं हटाया और इसको क्या रखा? कंटिन्यूटी में रखा. जिसके विरोध में गांधी जी ने क्या करा? सबसे पहले आप देखते हैं एक बंद का आयोजन, एक हड़ताल का आयोजन किया इन द इंपॉर्टेंट सिटीज. अब इस रॉलेट एक्ट की वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन्होंने इसका एजिटेशन या विरोध किया, द डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट लेड टू द मास एजिटेशन, ठीक है. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना आती है वो क्या होती है? जलियांवाला बाग मैसाकर, ठीक है.
So what is then the Jallianwala Bagh massacre? अब आप देख रहे हो कि एजुकेशन, यहाँ पे हमें मास एजुकेशन देखने को मिल रहा है कि अब विरोध हो रहा है, अब हड़ताल हो रहा है, ठीक है, देश के अलग अलग राज्यों पे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना कहाँ की हो रही है? पंजाब की हो रही है कि नहीं है? जलियांवाला कांड कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ है। ट्रेजेडी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आप देखते हैं कि ऑन अप्रैल 1919 माइकल ओडायर और जनरल डायर, ओके, ही वाज द गवर्नर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब. Okay, he arrested two important persons. One is Saifuddin Kitlu, another one is Dr. Satyam Bal. Okay, so these were the two popular leaders of Punjab. They were being arrested, and the news of this arrest of whom? Of Satyapal and Saifuddin Kitlu led to a hartal in Amritsar. Then a large crowd, okay, they gathered. And it was a peaceful, if we talk about the gathering was in a peaceful manner. Okay, so a crowd gathered in this place, in Jallianwala Bagh Park, where it was enclosed by three sides and there was only one way of exit. तो क्या हुआ वहाँ पे? उनको पूरी तरह से घेर लिया गया और उन पे क्या कर दिया गया? गोलीबारी शुरू कर दी. He ordered his troops to shoot the people who were gathered in the gathering or in the crowd. Okay. Then आप देखते हैं thousands were killed and wounded. So Mahatma Gandhi made up his mind now that they had to launch a non-cooperation movement here. And इनको यहाँ पे क्या मिला? दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या उन्होंने मन बना लिया कि नहीं, एक मूवमेंट्स की जरूरत है यहाँ पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की. और अब उनका साथ देने के लिए दूसरा हम यहाँ पे क्या देखते हैं? ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, आप देखते हैं हिंदू ये खिलाफत आंदोलन जिस समय शुरू हुआ, इसके अगेंस्ट था ये, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. आप देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आपने एक्सेस ऑफ अलाइड पावर तो पढ़ा ही होगा पॉलिटिकल साइंस. ओके, तो इस समय आप देखते हैं कि टर्की के सुल्तान जिनको क्या मानते थे? अपना धर्मगुरु मानते थे, खलीफा. ओके, तो उस समय इन्होंने क्या करा, ये किसके साथ जाके मिल गए? allied with Germany and Austria were the enemy against the British. They lost the war. और रिजल्ट क्या हुआ? Now they fragmented the Turkey and then this खलीफा वो अपनी मतलब कहते ना वो उनकी शक्ति को उन्होंने क्या कर दिया कि now after the war the British removed the खलीफा from his power. हमने देखा सबसे पहले हमने खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ उसी दौर में. ठीक है, क्यों हुआ? हमने देखा कि पहला विश्व युद्ध था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. टर्की, ठीक है, और जो टर्की के जो खलीफा होते थे उन्हें मुस्लिम अपना धर्मगुरु मानते, ठीक है, मानते थे. ये हमने देखा इस्लाम उन्हें अपना धर्मगुरु मानते थे. अब टर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ ऑस्ट्रिया जर्मनी का साथ दिया, युद्ध हार गए. ठीक है, जर्मनी ने क्या ये ब्रिटेन ने क्या किया? टर्की का जो खलीफा की शक्ति थी उसे खत्म कर दिया. और खलीफा कौन थे? मुसलमान के धर्मगुरु थे, स्पिरिचुअल लीडर्स. अब उन्होंने क्या करा? एक आंदोलन भारत में शुरू हुआ ब्रिटेन के खिलाफ. इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं आफ्टर द वॉर ब्रिटिश दे रिमूव द खलीफ फ्रॉम हिज पावर एंड फ्रैगमेंटेड टर्की. So the Muslims started Khilafat movement in India for the restoration of the Khalifa position. Okay, so here the leaders who led the movement were the Ali brothers. Who led the movement? The Ali brothers, Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali. Then you can see, and what was the demand during that time? As first demand was to restore the power of the Khalifa. पहला डिमांड वही होगा ना, क्योंकि आंदोलन इसीलिए किया है. दूसरा डिमांड क्या था? हमने देखा कि उन्होंने टर्की वॉज फ्रेगमेंटेड
फ्रेगमेंटेड मतलब उसको टुकड़ों में बांट दिया। अब वो कह रहे हैं कि द जजीरात उल अरब और अल अरब, जिसमें हम देखते हैं अरेबिया, सीरिया, इराक एंड फिलिस्तीन, ओके, मस्ट रिमेन अंडर द मुस्लिम सोवरेनिटी। ये वाला क्षेत्र मुसलमान के उसमें रहे, प्रभुत्व में, संप्रभुता में रहे। ये क्षेत्र कौन सा? जजीरात अल अरब का क्षेत्र, इसमें अरेबिया, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, ठीक है। देन खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरी टू एनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ। तो उनके पास क्या होना चाहिए? ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे वो क्या कर सके, अपने इस्लाम की वो रक्षा कर सके। देन here you can see Mahatma Gandhi saw this, if you talk about this Khilafat movement as an opportunity to unite Hindu and Muslim so that they could know the demand in this non-cooperation movement also. And by coupling this non-cooperation movement, okay, with Khilafat, the Hindu and the Muslim, these were the two major religious communities, okay, of India, would collectively bring an end to the colonial rule. So here comes a topic is there, knitting a popular movement. So what is this knitting of popular movements here? Uniting two important movements. One is the Khilafat movement, another one is the non-cooperation movement, where we saw the opportunity so that the major population or the major religious community, they should combine together so that they could fight against the British rule or they could end the colonial rule. Is this clear? Okay. Then, so when we talk about the causes here, so what were the causes for the rise or for the movement, for this non-cooperation movement here? So what are the causes? We discussed some of the important causes here. One was the Rowlatt Act. Okay, another one was the Jallianwala Bagh massacre or tragedy. Another one was the Khilafat, and there was a, even you can see, economic distress during and after the First World War. Okay, so these are the some factors which are